product, he went to a junior national footballer and a school captain and a graduate. In the category of Kargil Warrior. The next award, Mr. Sumit Mukherjee, in the category of Successful Entrepreneur. Mr. Vinod Anand, in the category of Most Successful Business Icon. Can we have the next award for the magical voice of Bollywood, Padma Bhushan Mr. Udit Narayan. This was the honor with the next award, Dr. Padham Abdul Razak Habib Khan, in the category of Global Entrepreneur. The next award goes to Dr. Teka Singh, in the category of Dentist and Cosmetology. She is an empathic and responsible cosmetologist with 5 years plus experience. And the next award goes to, in the category of business, Mr. Sami Sayyed. He is the CEO of Phoenix Group of Companies. Mr. Sami Sayyed started his career in engineering, sales, marketing, and high-tech filling and packaging machinery. And the next award goes to Mr. Ashish Prabhu in the category of Rising Personality of the Country. Mr. Prabhu is the co-founder of music record company Bullman Records and Turtle Dove Hospitality. The next award goes to Mr. Vinod Kadam, the Rising Youth Entrepreneur. The Vinod Anand Kadam is registered with the Ministry of Corporate Affairs as a director in Indian companies. Currently, he serves as a director in 4 companies in India. Mr. Vinod Kadam. The next award goes to Dr. Bu Abdullah in the Global Business Entrepreneur. He is an Ahmadi businessman of a far excellence, having his expertise in law and business. He is a country of more than 270 companies in Asia and other parts of the world. He is also a Bu Abdullah group of companies and includes real estate, legal firm and business. And the next award goes to Ms. Jyoti Adav, the Rising Youth Women Entrepreneur. Jyoti Adav is having a 5 years marketing board directors of business development and founder of Jovi Business. Group founder, director in Education Academy and a Jyoti Electric Vehicle Limited. And the next award goes to Ms. Kirti Nitin Valse in the category of International Model. Ms. Kirti Valse is a former Miss South Asia Canada and Miss South Asia Global. She is a spokesperson for the brilliant French Cosmetic. And the next award goes to Mr. Mufti Ziai, Mr. Mufti Manzoor Ziai, in the category of spiritual leader. He is a Islamic scholar and a founder of chairman and president of All India Gunnar Foundation and the International Sufi Mission. And the next award, please be ready, Mr. Abhishek Kumar Burman, in the category of Champion of Entrepreneurship. Mr. Abhishek Burman is a first generation entrepreneur and an aeronautical engineer by profession. Mr. Abhishek Kumar Burman in the category of Champion of Entrepreneurship. And the next award goes to Mr. Jaykul Sharma, Rising Youth Entrepreneur. He is the founder of Shiv Villas Resort. Jaykul Sharma is currently associated with 4 companies and director with Prince Castle Private Limited. And the next award goes to Dr. Muhammad Khan in the category of Global Media Celebrity GMC. He is the founder of and the president of Khan's Media City Dubai. And the next award goes to Mr. Mukesh Manveer Singh in the category of Business Tycoon. He is a managing director of DevOps Sales. Mr. Singh is also known as a board of other 7 companies such as Shining Sun Power, Sands Entertainment, etc. And the next award goes to Mr. Sarfaz Imtiaz Ahmed, the youth entrepreneur. He is a very successful entrepreneur running his business in the name of Share Ada Investment. The next award goes to Mr. Bhushan Jayachand in the category of Social Work. The next award, please be ready, Mr. Abhishek Kapoor
in the category of microfinance expertise. Dr. Abhishek Kapoor, doctorate in microfinance from American University for a global peace masters in microfinance from the UK, 16 years plus experience. And the next award goes to Dr. Rahul Bachcha in the category of organic farming. And the next award goes to Dr. Hari Krishna Maram in the category of global personality. Dr. Hari Krishna Maram, digital brand ambassador and the chairman of Vision Digital India and a vice chancellor, the Global Digital University USA. And the next award goes to Mr. Girish Chandra Sahu in the category of human rights activist. And the next award goes to Mr. Udit Narayan. पद्म भूषण मिस्टर उदित नारायण जी का मैजिकल वॉइस ऑफ बॉलीवुड. मिस्टर आदित्य कुमार प्रधान, मिस्टर गिरीश चंद्र साहू, he is belonging from Odisha and in the category of human rights activist. बैटरी मांग रहा है. मिस्टर आदित्य कुमार प्रधान, Next award, Uday Rajveer Singh. थैंक यू. 2 मिनट में आदरणीय महामहिम करता हूँ जो देश और दुनिया से, और आप लोगों ने सम्मान सिद्ध किया महामहिम के यहाँ, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ. आज हम लोग भारत के 91वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं. 27 तारीख को था लेकिन 31 को हुआ. आज 31 जुलाई मना रहे हैं. आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब की व्यक्तित्व भारत के संविधान के जो 4 हाउसेज हैं चारों में रहे. आप उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, उत्तराखंड से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, और आपका व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तराखंड में देखा गया जो बड़ा सराहनीय रहा. आज आपका भारी व्यक्तित्व और जन जन के लिए खुला ये ऐतिहासिक धरोहर महाराष्ट्र के मुंबई की राजधानी में हर जन के लिए यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं. और मुझे लगता है कि ये व्यक्तित्व और ये पद की जो गरिमा है वो हम सब लोगों को आदरणीय महोदय की तरफ से गौरवान्वित करती है. और आप सब लोगों के लिए इस सभागार में बैठना और उनके चरणों से सम्मान रिसीव करना गौरव का पल है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा. मैं ढेर सारी मुबारकबाद आपको देता हूँ. ये जो अवार्ड भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि गरीबी में भी चोटी के शिखर पे कैसे बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है. आदरणीय राज्यपाल महोदय का व्यक्तित्व बहुत हद तक कलाम साहब के आसपास दिखता है मेरी निगाहों में, क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए. कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे लेकिन वो सदैव अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखे गए और अपने आप को ऐसा ही मानते थे. तो वो व्यक्तित्व आदरणीय सर ने कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूल्स बनाए, और आज भी ये जो दरवाजा है इस राज्यपाल भवन का वो सदा लोगों के लिए खुला रहता है.
मैं अपनी वाणी में यही कहूंगा कि सर आपका व्यक्तित्व बड़ा प्यारा और न्यारा है, और इस सभागार में जो देश और दुनिया से आए हुए महानुभाव हैं, जिन्होंने अपनी माँ की आंचलों की दुआएं ली हैं, जिन्होंने अपने पिता के कंधों पे रखे गए ललकार लिए हैं और कामयाबी की तरफ बढ़े हैं, उन्होंने आज यहाँ पर ये सम्मान रिसीव किया। मैं ऐसा चाहूंगा कि आज ये अवार्ड रिसीव करके आदरणीय सर के हाथों से आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप बड़ा काम करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सर के दर पे हम सब लोग आज आए हैं, बहुत बेहतर सी चाय की भी तैयारी है। मैं ये कहूंगा कि दर पे आया हूँ तुम्हारे में सवारी बनकर, दीप बनकर, तो कभी पूजे की थाली बनकर, ईद के दिन में तुमको मिलने आया हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे घर में दिवाली बनकर। बड़ा प्यारा और न्यारा है। सामने बैठे हुए भारत के पद्म विभूषण और 50,000 नगमे गाने वाले उदित नारायण साहब भी हैं, जिनके गहराइयों से वेलकम करता हूँ। उनके सामने भारत की पद्मश्री और उम्मीद करता हूँ कि पद्म विभूषण से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय हमारी बहन कल्पना सरोज जी भी उपस्थित हैं, जिनकी गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आपके साथ जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं, अभी बहुत बड़ा पद भारत सरकार ने उनको दिया है और उन्हें कार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। हम यहाँ भी बधाई देते हैं और सब लोगों को बस में यही होगा कि भारत एक मुस्तक़िल तहजीब का मुल्क है, एक गुलदस्ता है, जहाँ आदरणीय सर जैसे व्यक्तित्व महान होते हैं, वो यूनिटी, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म को मेंटेन करके चलते हैं। तो मैं अपने लहजे में सर के हवाले से एक पैगाम दिए देता हूँ। आज इस धरोहर में, इस प्रांगण में जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत 7 धर्मों को रिकॉग्नाइज करता है। ये तो हजारों धर्म हैं, क्योंकि आस्था का देश है, देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, पहाड़ों का देश है, गंगा मैया का देश है, सरस्वती माँ का देश है, लक्ष्मी माँ का देश है। ये देश देवी देवताओं का है और ऋषि मुनियों का देश है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहावत ये है, सर के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले ले, भारत को प्रेम करो। यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के गार्जियन और बड़े लोकप्रिय, जन जन के प्यारे हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी साहब से अर्ज करूंगा, सर 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में जितना देंगे हम लोग यहाँ से कुछ सीख लेके जाएंगे। आपसे अपील करूंगा, खड़े होकर एक बार स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तालियों से APJ अब्दुल कलाम अवार्ड के आयोजन के आज के इस अवसर पर I hope most of the people understand Hindi so that I will speak. You from UAE maybe can also understand a little Hindi. तो मैं UAE में क्या अपना एयरपोर्ट पर I began to speak in English and they said we do Hindi. या इसके आयोजक डॉक्टर सुमीत साहब, अपने व्रत में आदरणीय गोलक भट्टाचार्य जी, सभी अवार्डीज और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज जिनको सबका सम्मान किया गया है, स्टेट किया गया है, ऐसे सभी भाई और बहनों को अभिनंदन करता हूँ। I congratulate you all and hope best of luck for you. मेरे लिए बड़ी कठिनाई है कि इस हॉल के अंदर पता नहीं मेरे अधिकारी में गिनती की गई नहीं, कि मुझे पता ही नहीं कैसे कैसे होते रहते हैं और सब इतने अच्छे से लोग आते हो। भाई 1-2 कार्यक्रम हो तो याद रखेगा। जितने कार्यक्रम होते हैं, तो चाहे मिस इंडिया आए, चाहे मिसेज इंडिया आए, चाहे मिस्टर इंडिया आए,
कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सर्विसेज में हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, एजुकेशनल क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको सम्मानित करो, आदर करो। और ये बड़ा ऐसा विषय है कि जो हर एक के को देखा नहीं है। और मुझे लगता है कि समीर भाई को पूरे छात्रों कर्मों की और दुनिया भर की सब चीजें आप बता रहे थे, तो जैसा वो भी बोल रहे थे APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल वैसे ही थे। हम सबको भी बहुत बार इस देश में मैं देखता हूँ आजकल कलाम साहब के पुस्तकें बहुत पढ़ी जाती है। संभवतः बेस्ट सेलर में से कलाम साहब की किताबें होंगी। अब कितने लोग पढ़ते हुए नहीं जानता, पर some of his books are the best sellers, ऐसी हैं। पर पुस्तकें कितनी पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना, हम सब लोग अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों को अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। और ये तो अवार्ड हमारे अवार्डीज को समीर ने या उनकी कमेटी ने, उनके ट्रस्ट ने दिया है। पर आप जो है वास्तव में आपके अच्छे काम को रिकॉग्निशन जो देते हैं उनको आप जानते भी नहीं हो। यदि आप अच्छे काम करते हैं तो समाज के अंदर लोग जो है भले ही वो आपके पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा काम करता है, देखो कितना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को फ्री की चिकित्सा करता है। ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे देखो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो एक प्रकार से अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता है, तो लोग उनका गुणगान करते हैं। ये तो वन टाइम आम है। लेकिन उनके बीच में मैं जब कभी कभी प्रेम जी बहुत अच्छे लोग हैं, पर मेरे मन में कभी कभी जो है जब मैं बहुत से अच्छे लोगों के बीच में बैठता हूँ, बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, समाज के अच्छे खाने वाले कहलाते हैं, डिफरेंट फील्ड में, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो अपना देश सब ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अमंग फर्स्ट 5 रिचेस्ट लोगों में से आ जाते हैं, अमंग फर्स्ट 10 रिचेस्ट लोगों में से आ जाते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा किसके प्रति ज्यादा है? तो अधिकांश लोगों का मत रहता है कि साहब ये अजीम प्रेम जी और रतन टाटा गजब के आदमी है। कौन है भाई? इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी कितनी सिंपलिसिटी, हाउ मच ह्यूमिलिटी, तो देख करके ऐसा लगता है कि भाई जैसे आम का पेड़ अगर आम में फल आ जाए तो झुक जाता है, ऐसे ये लोग तो एक मन के अंदर एक जो भाव जगता है, ये जगता है आपके कर्मों से। अभी एक सुबह के सज्जन बहुत अच्छे लोग बोले, बड़े अच्छे से मैंने ऐसी चर्चा की, तो मैं चर्चा में बोले हाँ साहब गजब है जी, बोले वो कभी भी फर्स्ट क्लास तो नहीं जाते, सामान्य लोगों के साथ जाते हैं, सामान्य लोगों के साथ बैठते हैं। अगर कहीं उनको खाने पीने में इधर आगे देखा जाए तो उसमें चीपेस्ट क्या चीज है, वो सबसे सस्ती चीज को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बहुत महंगा से महंगा खा सकता हूँ, मैं तो ताज के महंगे से महंगे प्रेसिडेंट
सारे दुनिया भर के उन सब का एक ही चीज रहता है कि भाई जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है वो उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। एक चीज अपनी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे एक्सेलेंस कर सकते हैं, हम बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, हम किसी भी फील्ड में है तो उसमें हम कैसे अपनी एक्सेलेंसी दिखा सकते हैं। एक दैट इज वन पार्ट, परंतु उसका जो अनसीन पार्ट है, जो देखा नहीं जाता वो पार्ट है, वो पार्ट है कि हम कैसे हम समाज के अंदर, समाज के सुख दुख में अपने को सहभागी बना सकते हैं। मुझे जाना कि कोरोना कालखंड में यहाँ अनेक लोगों को, छोटे छोटे कर्मचारी और छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस से लेकर के मेडिकल से लेकर के अलग अलग लोगों को बहुत लोगों ने सम्मानित किया। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आगे जो छोटे छोटे लोग हैं, नर्स से भी छोटा जो वार्ड बॉय टाइप के लोग हैं, कि उनमें से दी बेस्ट जो है डिपार्टमेंट ने कहा कि गवर्नर साहब ये जो हम आपको सिलेक्टेड लोग लाए हैं, ऐसे तो हजारों सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मुझे उनका सिलेक्शन भी अच्छा लगा। और ऐसे छोटे छोटे लोगों को गवर्नर हाउस में आकर के, सिंह के हाथ का कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन गवर्नर हाउस में आकर के जब उनको अवार्ड मिलता है तो उनसे केवल मुझे भी आशीर्वाद मिलता है, उनसे मेरे सरकार का आशीर्वाद मिलता है, मेरे देश का आशीर्वाद मिलता है। तो उनके अंदर की जो आवाज है उसका एक अलग ही महत्व है। अगर हम लोग क्यों इतना इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या हम में से किसी ने किसी को खुदा भगवान खुदा सबको देखा है क्या? राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, पर अंदर से क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि उससे अंदर से आनंद आता है। और हम सब लोग एक अपने अपने फील्ड के अच्छे लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में तो अगर बोलेंगे तो घंटों लग जाएंगे। मुझे ऑलरेडी लेट शुरू किया है, कोई बात नहीं, हमारे क्या कहते हो, बेटर लेट देन नेवर। एक बार ऐसे ही हम बैठे हैं, चर्चिल साहब के पास एक जनरल का एंग्लिश था, वो थोड़ा देर से पहुंचे, चर्चिल साहब नाराज हुए तो फट से बोला सर बेटर लेट देन नेवर। तो चर्चिल बड़ा जोर से चिल्लाए, बोले बेटर नेवर देन नेवर। तो इसीलिए पूछता महाराज क्या जाता है, कुछ तो विशेषता होती, हम जनरली यही बोलते बेटर लेट देन नेवर, लेकिन चर्चिल ने बोला अपने जनरल को, लिखा बेटर नेवर देन लेट, ठीक है। तो ये एक प्रकार से समय का जो महत्व है, हर एक चीज का महत्व है। आज हम सब लोग इस देश के अंदर एक ऐसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भला कल्पना करिए आप, कभी आप लोगों ने देखा, ये मेरे मित्र यूएई से फ्रॉम यूएई है, आज यूएई में कैन यू इमेजिन, कभी धार्मिक एकता की बात कर रहे थे, आज कभी हमने यहाँ पर जो विशेष करके हिंदू लोग होंगे, उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि यूएई में मंदिर भी बनेगा। अब आज देखें कि यूएई में मंदिर, और आज हमारा प्रधानमंत्री यूएई जाता है, उनके लोग मेरे आते हैं, और शायद इस समय यूएई के भारत के साथ इतने अच्छे संबंध है। तो पहले लोगों को लगता था अरे धर्म अलग है, फलां अलग है, तो पता नहीं कि दूरी तो नहीं है। ये दूरी कब होती है? जब ऊपर में बैठे हुए आदमी के अंदर में कोई दूरी नहीं है, जब वो समझता है कि हमको तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना है, तब दूरी खत्म होती है। देश के अंदर एक नया माहौल बन रहा है, अच्छा माहौल बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो आज हमारे समय भाई ने यहाँ आयोजन किया और मुझे आपको संबोधित करने का मौका दिया, हमारे प्रोफेसर साहब आए, प्रोफेसर साहब गुजरात में बहुत होता है, बहुत क्या माना जाता है, किसी न किसी कारण से तो ये भी हमारे बीच में आए और इनका साथ सहयोग मिला। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।
धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में पद्मश्री कल्पना सरोज जी हमारी कंपनी में कहूँगा आए और वोट ऑफ थैंक्स की भूमिका आप निभा दें प्लीज। आइए। को थैंक्स कहूँगी कि वो यहाँ आए और हमारे जो अवार्डी है उनको अवार्ड दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब जो यहाँ आए, आप सबको जो अवार्ड साहब के हाथों से मिला है, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी। और आगे की आपकी जो लाइफ है, साहब के हाथों से जो अवार्ड मिला है, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको और ज़्यादा ऊर्जा मिली होगी, और ज़्यादा काम करने की ताकत मिली होगी। तो आप लोग जो है वो इसी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे, यही कहकर मैं सभी की आभारी हूँ। आप आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेशनल एंथम प्लीज।